Namaste. A warm welcome to everyone over here. Good evening. On behalf of Kalinga Kalakendra Trust, myself Nikshita Sarangi will be the host of the event. With all your kind presence, it's our pleasure to have you here. First, we shall begin with the lighting of the lamp. I would like to invite our chief guest, Pandit Pushkar Lele, Dr. Pradnya Kulkarni, Srimati Pushmita Rath, Srimati Amrita Das, Shri Sandeep Rana, Dr. Mamata Mishra, and Srimati Urvashi Shah to please grace us. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्. I'd like to invite the chief guest, Dr. Pushkar Lele, all the trustees, and Dr. Pradnya Kulkarni on the stage, please, for a felicitation ceremony. A round of applause, please. Thank you for coming. Audience supporting in all aspects silently behind the scene. So I felt this is the best place to felicitate him. Thank you so much.
Before we start, I'd like to give a brief introduction about our respected chief guest, Dr. Pushkar Lele. He is India's leading North Indian vocalist of Gwalior Gharana. His gurus are Pandit Gangadhar Bua Pimple Khare, disciple of Pandit Vinayak Bua Patwardhan, Pandit Vijay Koparkar, disciple of Pandit Vasantrao Deshpande and Pandit Jitendra Abhisheki, Pandit Vijay Sardeshmukh, a senior disciple of Pandit Kumar Gandharva, Pandit Satyashil Deshpande, senior disciple of Pandit Kumar Gandharva, recipient of Central Government Scholarship for Classical Vocal Music from the Center of Cultural Resources from the Department of Culture, Government of India. Featured in various TV channels, Zee Marathi, ETV Marathi, Doordarshan Sayadri, DD Bharati, and All India Radio. He holds a master's degree in music from Lalit Kala Kendra, University of Pune. He holds a doctorate degree from Indira Kala Sangeet Vishwavidyalaya, Khairagad. Presently, he is working as a professor and HOD of Department of Performing Arts at Modern College of Arts, Sciences and Commerce. Founder Director of Gandharv School of Music. He also conducts workshops both online as well as offline on Hindustani classical music appreciation. He holds various prestigious awards, namely Pandit Vishnu Digambar Palushkar Award, Dr. Vasantrao Deshpande Yuva Kalakar Puraskar, Surmani, Gayan Acharya Ramakrishna Bua Vaze Puraskar, Sudhir Phadke Yuvan Mes Puraskar, Pandit Jitendra Abhisheki Smruti Yuva Puraskar, and Sanatan Sangeet. He has been performing for the past 30 years on various music stages, namely Pune Festival, Tansen Samaro in Gwalior, NCPM Mumbai, Nehru Center, Kalidas Festival Nagpur, Bharat Bhavan Bhopal, Kala Academy Goa, Prayat Sangeet Samiti Allahabad, Pandit V.D. Palushkar Jayanti Sangeet Samaro New Delhi, Shri Ram Shankar Lal Music Festival New Delhi, Bhakti Utsav New Delhi, ICCR New Delhi, Rajasthan International Folk Festival Jodhpur, RIFF, IGNCA, Indira Gandhi National Center for Arts, SRC Bangalore. He also conducts lecture demonstration for school children under the Spik Make program. He is an esteemed empaneled guru at Lalit Kala Kendra, Pune. He also has done international performances all over the world, namely in USA at Stanford University, Australia, Belgium, Netherlands, Israel, and so on. Apart from pure classical, he also presents Natya Sangeet, Bhava Sangeet, Bhajan, Tappa, Thumri, Dadra, Hori, Marathi Abhangas, Malvi Lokgeet, and folk forms. Albums to his credit brought out by Fountain Music, Ninad Creations, Dreams Entertainment, Sonic Octaves, etc. He has been featured as one of the 35 young achievers across India and published in India Today magazine. Kindly grace us by coming on the stage and speaking a few words. Thank you, Dr. Pushkar Lele. I'd like to introduce Dr. Pradnya Kulkarni as well. She holds a PhD in Sanskrit and Lexicography, MA in Linguistics, Assistant Professor at Deccan College, working here for 29 years, creative writer, performer, and YouTuber. She does research on informative videos on Indian culture. Kindly come and speak a few words. Thank you so much. It gives me immense pleasure to welcome you all for this function. And since yesterday, we are having a visual treat, and a treat indeed, for dance and music. And I'm so lucky to get introduced with so many people who are working in the field of art. So first of all, I would like to thank Mamta ji for this collaborative effort she is doing. This is the first collaboration Deccan College Art Circle is doing, and we are very happy and pleased to have this collaboration. However, we are having a little less students in Deccan College right now because many of them are busy with some excavation and some other academic activities. But the first collaboration has become successful only because of the efforts taken by Mamta ji. So as a token of our love, I would like to felicitate Mamta ji for that and give her a small gift from Deccan College Art Circle. Please, Mamta ji. Since yesterday, we have seen
the performances and the demonstrative lectures by the performers of different dance forms, in which we covered Kathak, then Uday Shankar dance form, then Odissi and Godio. So it was a wonderful thing for the students of Deccan College to participate in this workshop and get benefited. So I'm very happy and thankful to the Kalinga Kala Trust, and we wish we will have many more such collaborative programs with Kalinga Kala, and even we are some of the collaborations are lined up and we are looking forward to have it, right Urvashi ji? So I thank all the people from all the trustees from Kalinga Kala Kendra, and thank you all, and thank you dear students. To give a brief introduction about the visionary, the founder director behind Kalinga Kala Kendra Trust, Dr. Mamata Mishra. She is a classical artist, educationist, spiritual therapist, and social reformer to work intensively for the art and artists of India. She is the founder president of Kalinga Kala Kendra Trust, whose aim is connecting artists, enriching art and culture globally. She is the founder director of Kalinga Kala Kendra, an institute of music, dance, and performing arts. She has over 35 years of experience in vocal music and Odissi dance. She has been having experience of 15 years of founding Kalinga Kala Kendra. She is a Hindustani classical and ghazal artist. She also sings bhajans and many more. Her gurus are first Guru Srimati Shantilata Mishra, who is her mother, Guru Srimati Anita Goswami, Guru Srimati Sujan Pandit from Kirwana Gharana, Guru Srimati Sumati Roy, completed Visharad, continuing specialized techniques of classical vocal from Guru Pandit Ajay Chakrabarti from Shruti Nandan, Kirwana and Patiala Gharana. She has also learnt Odissi from Kala Vikas Kendra, Cuttack, Odisha. At the same time, she has been a PhD researcher in music and fine arts. She holds a postgraduate in microbiology and computer science. She is a patron of Shri Jagannath Chetna Gabesana Pratishthan, Puri, Odisha. She has an expertise in music sound therapy and inner conscious awakening through music and dance, a new concept of learning through scientific, logical, and yogic way, making learning easier for students. She has students all over the world, from India, US, Australia, Poland, and Dubai. She supports, educates, and promotes Indian art and culture, weavers, painters, and spreads the essence of Vedas, Jagannath culture, and Bhagavad Gita across the globe. She has been organizing all across India from the past 35 years. Subra Samir Das, Swati Lagna Jena, and Pradyumna to come on the stage. An IT engineer and a trained vocalist known for her captivating performances. She has been recognized with national and state awards such as Sambad Saregama and Radio Chocolate. Swati Lagna has showcased her talent at prestigious events like Dubai Expo 2020 with Kalinga Kala Kendra. She currently continues her music journey under the guidance of Dr. Vilina Patra, a senior disciple of Pandit Sanjeev Abhyankar. Subra Samir Das is not only excelling in his IT profession and also making a mark as a passionate Hindustani classical vocalist and ghazal singer from Pune. His achievements, including national and state awards and his participation in Indian Idol Season 1, speak volumes about his talent and dedication. His performance at Dubai Expo 2020 must have been a memorable experience for both him and the audience. It's great to know his skills. It's great to know that he continues to refine his skills by taking Hindustani vocal training from Dr. Vilina Patra and ghazal training from Ali Hussain. Shri Pradyumna Mahapatra feels fortunate to be born in a family of musicians. His father, Nirmal Kumar Mahapatra, a retired Doordarshan producer, music director, singer, classical sitar player, has made numerous contributions in the field of music. He is Pradyumna's first guru to inspire him towards classical vocals. Pandit Gopal Panda from Gwalior Gharana laid the foundation of classical music for him in Bhubaneswar. Currently, under the able guidance of Pandit Sanjay Patki of Agra Gharana, he is pursuing his passion of classical vocals. For him, the learning will continue till the very end.
He is a corporate professional for more than 2 decades, but now he's devoted to his passion. He's forever grateful to his gurus and wants to make him proud. I'd also like to introduce Shri Rajgopal Gosavi. He is a tabla, dholak, pakhawaj maestro since the past 25 years. His guru is Pandit Pandurak Mukhade. He's performed at major festivals like Savai Gandharva and all across the world. I'd also like to introduce Rucha Deshpande, who will be gracing us with the harmonium. Thank you so much. Let's continue. सुमिरन दीप जलाई के करूं हृदय में ध्यान, शरण पड़े कि लाज रख संताप हारी सुख करण, सिद्धि विनायक दुख हरण, संताप हारी सुख करण, संताप हारी सुख करण, करु प्रार्थना नित्य वरदान मंगल दीजिए, रख लाज मेरी गणपति। तेरी दया तेरी कृपा है नाथ, हम मांगे सदा तेरी। तेरी दया तेरी कृपा है नाथ, हम मांगे सदा है नाथ, हम मांगे सदा तेरे ध्यान में खोए मति। प्रणाम हम अब लीजिए, रख लाज मेरी गणपति। करते प्रथम तब वंदना, तेरा नाम है दुख भंजना। करते करते प्रथम तब वंदना, तेरा नाम है दुख भंजना, तेरा नाम है दुख भंजना।
रखना जी मेरी गणपति अपनी शरण में लीजिए रखना जी मेरी गणपति सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान तुलसी हार गळा कासे पीतांबर तुलसी हार गळा कासे पीतांबर आवड निरंतर आवड निरंतर तेची रूप सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते मकर कुंडली गणपती श्रवणी
रिद्धि सिद्धि विवेकदायिनी तुम त्रिशूल विनाशिनी रिद्धि सिद्धि विवेकदायिनी रिद्धि सिद्धि विवेकदायिनी तुम त्रिशूल विनाशिनी देवी वंद सुहासवर्दिनी देवी वंद सुहासवर्दिनी हृदय हास विराजने शारदे जय हंसवाहिनी जयति वीणावादिनी मधुर काव्य कला दीक्षा प्रणवेनाद विकासिनी मधुर काव्य कला दीक्षा गवदनी गवदनि सा नि सधनि गवध मदनी धनि सा नि ध गवध मद मदनि मधुर काव्य कला दीक्षा प्रणविनाद विकासिनी भगवती संगीत वरदे भगवती संगीत वरदे भुवन मानस वासिनी शारदे जय हंसवाहिनी जयति वीणावादिनी जय सरस्वती ज्ञानदायिनी जय सरस्वती ज्ञानदायिनी कमलहास विराजिनी जय हंसवाहिनी जयति वीणावादिनी जयति वीणावादिनी जयति ब्रजभूमि मोहनी मैं जाने
ब्रजभूमि मोहनी मैं जानी मोहन कुंज मोहन गंगा जल मोहन कुंज मोहन गंगा जल मोहनी यमुना पानी पानी मोहनी यमुना पानी पानी मोहनी यमुना पानी पानी ब्रजभूमि मोहनी मैं जानी ब्रजभूमि मोहनी मैं जानी मोहन नारी सकल गोकुल की मोहन नारी सकल गोकुल की मोहन नारी सकल गोकुल की बोलत अमृत वाणी बोलत अमृत वाणी बोलत अमृत वाणी वाणी बोलत अमृत वाणी वाणी बोलत अमृत वाणी वाणी बोलत अमृत वाणी वाणी ब्रजभूमि मोहनी मैं जानी श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर मोहनी राधा रानी मोहनी राधा रानी 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 रानी ब्रजभूमि मोहनी मैं जानी मोहन कुंज मोहन गंगा जल मोहन कुंज मोहन गंगा जल मोहनी यमुना पानी पानी मोहनी यमुना पानी पानी मोहनी यमुना पानी पानी ब्रजभूमि
विमुख शिखर से धारा धाये राधा हरि सम्मुख लाए। बांसुरिया हरि सावरिया गोरी सुनवारे बाजे मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर। होठ पे माया विराजे, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। हरे हरे बांस की बनी मुरलिया, हरे हरे बांस की बनी मुरलिया। मरम मरम को छुए अंगूरिया, मरम मरम को छुए अंगूरिया। चंचल चतुर अंगूरिया जिस पर, चंचल चतुर अंगूरिया जिस पर। कनक मुंदरिया साजे, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर। होठों पे माया विराजे बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। पीली मुंदरी अंगूरी श्याम, पीली मुंदरी अंगूरी श्याम। मुंदरी पर राधा का नाम, मुंदरी पर राधा का नाम। आकर देखे सुने मधुर स्वर, आकर देखे सुने मधुर स्वर। राधा गोरी ताजे, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। मुरलिया
हरी गगरिया भूल गए गोधन को सबरिया, भूल गए गोधन को सबरिया। जाने न जाने ये दो जाने, जाने न जाने ये दो जाने। जाने लग जग राजे बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। मुरलिया मुरलिया बाजे, मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, मुरलिया बाजे, मुरलिया बाजे। धन्यवाद। कोशिश करता हूँ, भूल चूक माफ। ये दिल, ये पागल दिल मेरा, ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये पागल दिल मेरा। ये दर्द की तन्हाइयाँ, ये दर्द की तन्हाइयाँ, ये दश्त का वीरा सफर। ये दर्द की तन्हाइयाँ, ये दश्त का वीरा सफर। हम लोग तो उकता गए, हम लोग तो उकता गए। उसने कहा आवारगी, इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये पागल दिल मेरा।
मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया। कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया। मैंने कहा तू कौन है, मैंने कहा तू कौन है। उसने कहा आवारगी इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था। वो क्या हुआ आवारगी, ये पागल दिल मेरा। एक अजनबी झोंके ने जब पूछा मेरे गम का सबब। एक अजनबी झोंके ने जब पूछा मेरे गम का सबब। सहरा की भीगी रेत पर, सहरा की भीगी रेत पर मैंने लिखा आवारगी इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था। वो क्या हुआ आवारगी, ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया। आवारगी आवारगी आवारगी। थैंक यू। आपके सामने एक मराठी गज़ल पेश करूँगी। ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, मैंने कभी मराठी गज़ल गाया नहीं, तो चूक माफ। केतकीच्या बनी तिथे नाचला गमोर, केतकीच्या बनी तिथे नाचला गमोर, गहिवरला मेघन भी सोडला गधीर, केतकीच्या बनी तिथे नाचला गमोर.
नाचला ग मोर. भावपूर्ण रात्रीच्या अंतरंगी डोळले, धोक्यातून कुणी आज भावगीत बोलले. भावपूर्ण रात्रीच्या अंतरंगी डोळले, धोक्यातून कुणी आज भावगीत बोलले. डोळ्यात पाहिले कौमुदीत नाचले, स्वप्नरंग स्वप्नेच्या सुरा सुरा थांबले. झाडावरी दिसला ग भारराच्या खोर, गहीवरला मेघनभी सोडला बधीर. केतकीच्या बनी तेथे नाचला ग मोर, केतकीच्या बनी तेथे नाचला ग मोर, केतकीच्या बनी तेथे नाचला ग मोर. एक मराठी गजल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ. समजावुनी बेथेला, समजावुनी बेथेला, समजावता न आले. समजावुनी बेथेला, समजावता न आले. मज दोन आसवाना फुलकावता न आले. समजावुनी बेथेला, समजावता न आले. समजावुनी बेथेला, समजावता न आले. सर एक श्रावण्याची खाली निघून गेली. सर एक श्रावण्याची खाली निघून गेली. माझ्या मुक्या तृषेला, माझ्या मुक्या तृषेला, पण बोलता न आले. माझ्या मुक्या तृषेला, पण बोलता न आले. मज दोन आसवाना फुलकावता न आले. समजावुनी बेथेला, समजावता न आले.
मजदोला सवाना फूल का बताना ले समजावनी बेथेला समजावताना ले समजावनी बेथेला समजावताना ले समजावताना ले समजावताना ले. मैं तो हवा हूँ, मुझ पे क्या पहरे लगाओगे. मैं तो हवा हूँ, मुझ पे क्या पहरे लगाओगे. महसूस ही करोगे, मुझे छू न पाओगे. मैं तो हवा हूँ, मुझ पे क्या पहरे लगाओगे. महसूस ही करोगे, मुझे छू न पाओगे. मैं तो हवा हूँ, मुझ पे क्या पहरे लगाओगे. कद अपना तुम जमीन से कितना उठाओगे. आ, 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 कद अपना तुम जमीन से कितना उठाओगे. मैं आसमां हूँ, तुम मुझे कभी छू न पाओगे. मैं आसमां हूँ, तुम मुझे कभी छू न पाओगे. महसूस ही करोगे, मुझे छू न पाओगे. मैं तो हवा हूँ, मुझ पे क्या पहरे लगाओगे. आई न हो अगर तो रहो एक हाथ में. आई न हो अगर तो रहो एक हाथ में. आई न हो अगर तो रहो एक हाथ में. वरना इधर उधर में
कहीं टूट जाओगे, वरना इधर उधर में कहीं टूट जाओगे। महसूस ही करोगे, मुझे छू न पाओगे। मैं तो हवा हूँ, मुझ पे क्या पहरे लगाओगे। मैं तो हवा हूँ, मुझ पे क्या पहरे लगाओगे। महसूस ही करोगे, मुझे छू न पाओगे। मैं तो हवा हूँ, मुझ पे क्या पहरे लगाओगे। मैं तो हवा हूँ, मुझ पे क्या पहरे लगाओगे। रस्मी उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे। रस्मी उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे। रस्मी उल्फत
बचाए कैसे, रस्मी उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्मी उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। अनजाने ही तेरे नैनों से वादे किए कई सारे हैं। सांसों की लय मध्यम चले तो से कहे बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। ग प प स स रे ग, चंदा को ताको रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में। पलकों पे झिलमिल तारे हैं, आना भरी बरसातों में। चंदा को ताको रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में। पलकों पे झिलमिल तारे हैं, आना भरी बरसातों में। सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन,
बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। पनी सरे मामा गा गा सा नी, निरे गरे नि द निरे नि म द नि द, द नि रे पा पा म म म द द म रे पा द, ग म द नि सा सा नि पा म प म द रे, सा रे ग सा अंगना फूल खिलेंगे। पनी सरे ग सरे पा पा म म ग ग नि सा नि, म म पनी सा नि, म पनी सा सा, रे पा पा म ग ग। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। हरि अनंत हरि रूप अनंता, हरि अनंत हरि रूप अनंता, कैसे कोई ध्यावे, राग रागिनी के सुर सुर में, राग रागिनी के सुर सुर में, हरि निज रूप दिखाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर धरती भीतर बीज पड़ा है, धरती भीतर बीज पड़ा है, प्रभु के चरण लगे तो हो
धरती भीतर बीज पड़ा है, धरती भीतर बीज पड़ा है, प्रभु के चरण लगे तो बीज बन गया, फूल गंधले दूर गगन तक भाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, पाया धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, पाया धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, पाया धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। क्या बात है। मैं अभी सोच रही थी कि स्वाति को बोलूँगी, नहीं बस और उसको ये, बट यही मेरे रोंगटे खड़े कर दिए लास्ट गाना। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन इन्होंने किया। आशा करती हूँ पुष्कर जी को भी अच्छा ही लगा होगा इन सब के प्रस्तुति का। और बहुत बहुत धन्यवाद राजगोपाल जी को, रुचा देशपांडे जी को। कितना अच्छा उन्होंने रिदम और वो हारमोनियम पे अपने स्वरों को अपनी उंगलियों के माध्यम से बजाया। इसके वजह से और भी चार चांद लग गए हमारे इस महफिल को। बहुत अच्छा लगा। सुब्रा जी, प्रद्युम्न जी, बहुत अच्छा प्रस्तुति था। और मैं आपको कल इसी के बारे में कह रही थी कि कलिंगा कला केंद्र वर्क्स ऑन बैलेंसिंग ऑफ द ब्रेन्स। नॉट ओनली दे आर IT प्रोफेशनल, जस्ट सी इतना प्रैक्टिस करने के लिए कितना समय लगता है। और IT प्रोफेशनल में शी इज़ वर्किंग इन अर्नस्ट एंड यंग। इट्स whenever I used to ask where is Swati, she will be on phone। तो कभी मुझे उससे समय नहीं मिला, बट उसको मैं हमेशा डांटती थी, क्यों नहीं कर सकती हो। शुभ्रा को भी हमेशा, दे हैव ऑलवेज अंडरस्टूड दैट आई एम पुशिंग देम, बट द पुश इज़ दिस इज़ द रिजल्ट। सो ये जो रियाज और ये जो करते हैं और उसके साथ अपना फैमिली देखते हैं, यही कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ द ब्रेन्स। वहाँ पर लॉजिक एंड क्रिएशंस दोनों का काम होता है। प्लीज़ गिव अ राउंड अपलॉड टू ऑल दिस आर्टिस्ट जिन्होंने इतना मेहनत किया है। प्रद्युम्न जी भी कल एक मैरिज फंक्शन से आए, अपने गुरु के बेटे का शादी में व्यस्त थे, फिर अपना जॉब, फिर यहाँ आना। इट्स बियॉन्ड वर्ड्स जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ। और दूसरी बात है कलिंगा कला केंद्र, क्योंकि कलिंगा इज़ फ्रॉम द ईस्टर्न स्टेट, इट्स अ ओल्ड नेम ऑफ ओडिशा एंड बीइंग फ्रॉम पुरी जगन्नाथ धाम एंड एसेंस ऑफ भगवत गीता, ये तो करती हूँ स्पिरिचुअलिज्म के माध्यम से। जब मैं 13 साल की उम्र में गाना शुरू किया, मेरी मम्मी बहुत खुश हो रही थी कि मेरी बेटी को इतनी कम उम्र में स्टेज परफॉर्मेंस गुरु ने दिया। जब मैं 18 साल में पहली बार मेरी गुरु के साथ बैठ के जज करने लगी, मेरे गुरु को भी उतना ही सम्मान, उतना ही अच्छा लगा कि मैं उनके साथ बैठ के एक अच्छा सा कॉम्पिटिशन्स को जज कर रही हूँ। लेकिन शायद मेरा नाम ममता है और उसका नाम है प्यार, उसका मतलब है प्यार। कल भी जब डांसर्स डांस कर रहे थे, मेरी बेटी ने एक बात बोला, मम्मा तुमने मेरे ऊपर इतना खुश नहीं हुआ जितना तुम आर्टिस्ट लोग गाते हैं तो तुम एकदम रोंगटे खड़े हो, खुश होती हो एकदम। मेरे लिए इतना खुशी नहीं दिखाया कभी। दांत तुम्हारे 32 के दिख रहे थे पूरा एकदम। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। और यही मेरी गुरु ने ही मुझे सिखाया कि जब उन्होंने मुझे बनाया, मेरा भी कर्तव्य है मैं इनके साथ रहूं। तो कोविड के टाइम पे जब मुझे पता चला सारे कैरोके के सॉन्ग्स गाए जा रहे हैं, बहुत ब्लॉग्स बन रहे हैं इंस्टाग्राम में, सब जगह पर, मैंने महसूस किया है मेरे सामने
मेरे 2 आर्टिस्ट फ्लूटिस्ट इस दुनिया से चले गए, गुरु और शिष्य दोनों ही छोड़ के चले गए। तो उसका जो मुझे दर्द है वो मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। तब से मैंने कसम खाया कि मैं जितने सारे म्यूजिशंस हैं, क्योंकि ये लोग नहीं बजाएंगे तो हम लाइव परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। और कैरोके इतना दमदार हो गया कि इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल पड़ गया, और इजीली अवेलेबल भी वो हो गए, तो उन्हें लगा कि वही अच्छा ज़रिया है काम करने का। मैंने इसको तोड़ने के लिए मैंने कसम खाया कि मैं ट्रस्ट बनाऊंगी और ट्रस्ट के माध्यम से और ऐसे बहुत सारे ऐसे काम करूंगी। बट इसके लिए आप सबका सहयोग और आज पुष्कर जी का आना ही ये यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स है कि इतने बड़े शागिर्द, जो इतने बड़े कलाकार, जिनको मैं मेरी बेटी को कल बोली वो विकिपीडिया में है, तुम जानती हो मेरा कितना बड़ा ब्लेसिंग्स है, और उन्होंने झट से हाँ बोला और आ रहे हैं बोला। प्लीज़ सर, कम ऑन स्टेज, वी नीड टू हियर फ्रॉम यू। Good evening to all of you. Firstly, I'd like to thank Mamta ji for calling me, and Pradnya, Dr. Pradnya madam, for thinking of me and calling me as a chief guest. I don't know whether eligible to be here in the first place, but it has been a great pleasure to sit there and listen to all the wonderful performances. And it's really commendable that all of you are working professionals. You're not professional musicians. And I mean, had she not told me that, I would have considered that you are professional musicians. So a great round of applause for all of them once again, please. I cannot stress enough the importance of art that is there in our lives. And especially as Mamta ji said, that in post-COVID times, I think all of us have realized that we really need very little in our lives. You know, we need to sort of declutter our lives, simplify our lives, and really count on what is really important to us. And apart from the mundane day-to-day things that we do in our life to earn money and, take care of our families and all of that, in addition to that, an equal importance has to be given to something that you are passionate about. Whether it is sports, whether it is arts, that enrichment cannot be bought. You know, it really has to be earned, and it really has to be experienced. So I think it's really wonderful that you have started such a wonderful foundation, and that you are trust. And I wish you all the very best. The sense of aesthetics that this college stands for, you know, this is a college of Indology and archaeology, and I always wonder that we had such a great sense of aesthetics and arts and fine arts and performing arts. Where has all it gone? You know, where has the aesthetics in this gone? So it is very important that along with performers like these, all of us also have an equal responsibility to find that passion in us, to find that aesthetic in us, and to live our lives with as much beauty and grace as possible. I've tried my best to sound a little intelligent so that I, feel more eligible for the role that I've called in. So thank you once again, and all the best. My best wishes with you. Sir, we want to hear something because this is an education institute. और मेरा जो ये ट्रस्ट करने का मेन मकसद है नॉट जस्ट परफॉर्मेंस, इट्स अबाउट लाइक मैंने बहुत बार देखा है आर्टिस्ट जब गाते हैं दे नीड टू टेल अबाउट द राग, दे नीड टू टेल अबाउट द ताल ओवर देयर, सो दैट जो भी ऑडियंस आते हैं वो एटलीस्ट समझें कि ये नाम है, कुछ है। कल जैसे मैंने उनको बोला था घराने के बारे में, तो उनको कल एक्सप्लेन किया व्हाट इज़ घराना। बहुत डर जाते हैं, ये ग्वालियर घराना, ये आगरा घराना, ये क्या क्या घराना है। मैंने सिंप्लीफाई में बोला कि जब आपके घर में एक नॉर्मल कोलम का राइस आता है, पुष्कर जी के घर में उसी राइस को जिस तरह पकाते हैं वो अपना चावल है, मेरे घर में जो वही राइस उसी तरह बनाऊंगी वो मेरा चावल है। मेरे घर में जैसे बना, आप लोग मेरे घर में आए तो मुझे आप बोले कि आपका घर का खाना अच्छा लगा, तो आप फिर मेरा ही खाना फॉलो करते करते गए। तो उसी तरह से
सिंप्लीफाई में बताने से लोगों को एजुकेट करना और क्लासिकल को समझाना डे टू डे लाइफ से अगर लेके जाएंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। वरना क्या होता है, घराना स्टाइल ऐसा बोलने से तो जो आ रहा है वो सोच रहा है मुझे नहीं पता, वो भले अपने अच्छे गुरु के पास सीखा होगा पर वो गुरु किस घराने के हैं उनको नहीं पता है। तो वो चीज़ अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करें, और कल मैंने जब आपके बारे में जाना कि आप कुछ तरीके से सिखाते हो, काइंडली थोड़ा सा आप अगर समझाएंगे कि किस तरह से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा क्योंकि आज के ज़माने के बच्चों को क्लासिकल में पिकअप पकड़ना है तो मैं बोलती हूँ मेथी नहीं खाना है मत खाओ, लेकिन पराठे के अंदर मेथी डाल के सबको खिलाऊंगी और क्लासिकल वही है। तो स्वरों को बिना किस तरह से गाया जाना चाहिए, अगर उसकी तालीम पहले से ठीक से हो ना तो शास्त्रीय का वो सब शब्द ही इतना कष्ट न लगे। तो वो शास्त्रीय नाम से डर जाते हैं। हालांकि जब 6 महीने के बाद जब गाना शुरू करते बोलते हैं मैम आपने शास्त्रीय सिखाया। मैं बोली हाँ तुम लोग शास्त्रीय गा रहे थे बट हमने तो बोला था हम नहीं गाएंगे। मैंने बोला वो उसका ज़िम्मा मेरा है। तो आप भी ऐसा कुछ करते हो, वो मुझे पता चला आपके लाइंस में, आप जानना चाहते। मैं तो घर में सिखाता हूँ बच्चों को, विद्यार्थियों को, पर मुझे लगता है कि हम कलाकारों की ये जिम्मेदारी है कि ऑडियंस को भी थोड़ा सा ट्रेन करें, क्योंकि आजकल कलाकार तो बहुत हैं और बहुत अच्छे अच्छे भी कलाकार हैं। ऐसे नहीं है जो रोना सब रोते हैं कि हमारे ज़माने में ऐसा था, हमारे ज़माने में बहुत अच्छे अच्छे गायक थे, आजकल के गायक कैसे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी आज के ज़माने में भी बहुत उम्दा गाने वाले गायक हैं, वादक हैं, नर्तक हैं, सभी हैं, पर समझने वाले हैं क्या? हाँ, क्योंकि ये जो कलाएं हैं, क्लासिकल कलाएं हैं, ये एक तरफ ही नहीं है, ये 2 वे डायलॉग है। अगर यहाँ से बहुत अच्छी बात कही जा रही है और वहाँ से रिस्पांस ही नहीं आ रहा है तो फिर वो बात नहीं बनती। हाँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि तानसेन का वजूद तभी है जब सामने उसके कानसेन बैठा हो, और कानसेन बनना भी कुछ कम बात नहीं है, बहुत कठिन है, आसान नहीं है, बहुत इन्जॉयबल है कि उस मकाम पे आप चलें जिस पे, तो हमने पूरा एक कोर्स डिवाइस किया है। 4 महीने हम उसको चलाते हैं, पर 4 महीने में हफ्ते में 3 दिन माने 6 घंटा हम उनको हफ्ते में देते हैं, ऐसे मल्टीप्लाइड बाय 4 मंथ्स, फिर भी कम पड़ जाता है। और एट द एंड ऑफ द कोर्स पार्टिसिपेंट्स पूछते कि अरे थोड़े से और सेशंस क्यों नहीं लेते आप, अभी तो शुरू किया आपने। हाँ? तो ये सभी कलाएं हमारी इतनी बड़ी हैं और इसमें इतना डीप में जाया जा सकता है, पर उनको सिंप्लीफाई करके, जैसे आपने कहा, बताना ज़रूरी है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। नहीं तो नया ऑडियंस डेवलप ही नहीं होगा, नंबर्स में होगा, क्वालिटी में शायद नहीं होगा। हम बात हमेशा नंबर्स की करते हैं और सोशल मीडिया में भी हम उसी की बात करते हैं कि कितने आपके फॉलोअर्स बने, कितने लोगों ने आपको लाइक किया, कितने लोगों ने आपका शेयर किया, रीट्वीट किया। सो इट इज़ ऑल क्वांटिटेटिव, बट कितने लोगों में से कितने दर्जे के कलाकार लोग थे जिन्होंने कुछ अच्छा कमेंट किया या दर्जे का कमेंट किया, वो कोई नहीं देखता। सो एज क्वांटिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, सो इज़ क्वालिटी। एंड क्वालिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एनर्जी लगता है ऑडियंस की तरफ से, एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगता है इन कलाओं को समझने के लिए, और एप्लीकेशन माइंड करने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं, है ना। जो बिल्कुल सीधी सी डाइजेस्टेबल चीज़ है या जिसको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, वो हम ज़्यादा चाहते हैं। जिसमें हमको थोड़ा कष्ट होता है, जिसको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, उसके लिए हम ज़्यादा तैयार नहीं होते। तो इसलिए हमने उस कोर्स को ऐसे डिवाइस किया है कि मज़ा भी आए और जाते जाते बहुत कुछ सीख भी जाए। तो उसके लिए तो इनको वो कोर्स करना पड़ेगा, तब ये समझ पाएंगे। But it's an enjoyable course. When we have the next batch, I will probably send the details over to you.
And it's online, so anybody anywhere in the world can do that course. Thank you. Thank you.